In this topic, principal focus, the main point is always remember this point is always lie on the principal axis. Listen carefully. Principal focus is a point. In fact, it is a point which is always lie on the principal axis. Okay. Now we are talking to first principal focus. Now we are going to talking first principal focus. First principal focus. Okay, student. First principal focus is a point object for which image always formed at infinity. Clear? Listen once again. First principal focus basically is an object point which is lie on the principal axis for which image always formed at infinity. So listen here. Now we can take a convex lens and now we can suppose this is the principal axis. By definition you already know that this is the C2 and this is the C1 and this is the O. O is the optical center. C1, C2 is the center of curvature. For first surface C1 is the center of curvature and for second surface and C2 is the center of curvature. It's clear, student? Any objection? Now if a line passing through C1, C2 and also optical center, so this is called principal axis. By definition, first principal focus is an object point for which image formed at infinity. Here is a point object. Here is a point object. We can suppose here is a point object. Okay, student? Here is a point object. When a ray incident normally on the convex lens, it goes without deviation. When a ray incident at an angle from rarer to denser medium, and now after passing through a refraction from denser to rarer medium, it becomes parallel according to the principle. Listen once again. Listen once again. We can suppose a point object here. When a ray incident on the convex lens, after refraction, they become parallel to the principal axis. As you know, this is the principal axis. As you know, this is the principal axis. Clear? As you know, this is the principal axis, and after refraction by a convex lens, this is the convex lens. This lens is known as convex lens. After passing through the convex lens, these incident rays becomes parallel to the principal axis. So this point is called first principal focus. Okay, student? This is the first principal focus. Logically, we can imagine a point object here at the first principal focus. Logically, we can imagine a point object here at first principal focus. But in fact, we can say from first focus point, if an object lie here, a ray incident on the convex lens, after refraction, the ray becomes parallel to the principal axis. Okay, student? Any problem? Now we can discuss first principal focus for a concave lens also. Okay, look at here.
this is the concave lens. Okay, and we can draw a principal axis for which, okay, for which center of optical center, and this is the first center of curvature for first spherical surface, and this is the second spherical surface, and this is the second center of curvature. As you know, an imaginary line passing through C1, C2 and also from O, this is known as the principal axis for the concave lens. This is your concave lens, right? Okay, by definition we are going to discuss first principal focus, right student? Okay, by the property of, yani with the help of property of concave lens. Okay, because as you know that this is the diverging lens. Okay, this is the diverging lens. So what can we do? When a ray incident like this, right, after refraction, if, listen once again, if a concave lens is not present here, the ray is always meeting here. Okay, we can just imagine, we can just seems like after refraction a ray parallel to the principal axis. After refraction the ray parallel to the principal axis, but we can just seems a ray coming from this point, and this point is known as the first principal focus for the concave lens. It's clear? Now we can just imagine a point object here also. We can just imagine here a point object also. We can imagine a point object also. So by the definition we can say a point object which is lie on the principal axis for which image formed at infinity. Image formed at infinity. Okay student, image formed at infinity. Now we can summarize this focus. स्टडी करेंगे हम प्रिंसिपल फोकस. ओके, प्रिंसिपल फोकस की दो टाइप होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस. इसकी दो टाइप हो जाती है, जिसमें हम क्या, पहला हमारा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर बोथ लेंसेज, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव. ओके स्टूडेंट. ओके, इन फैक्ट, अब आप ध्यान से सुनेंगे. इन फैक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉर विच, लिसन वंस अगेन, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. सो लुक इट हियर, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगी. मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, F1. यही क्या है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर मैंने क्या रखा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया. ओके, यहाँ से जो रे इंसिडेंट होगी, ये जो रे इंसिडेंट हो रही है, ओके, ये जो रे इंसिडेंट हुई विदाउट डेविएशन पास आउट हो जाएगी, लेकिन ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ओके, और इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिट पर. सो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. F1 क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है. ये ऐसा ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है
जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है, जिसके लिए इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिट पर बनेगा। क्लियर है। अब हम कॉनकेव लेंस लेते हैं। क्या लिया हमने, कॉनकेव लेंस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। सेम कंसेप्ट कि ये क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसके लिए इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिट पर बनेगी। और इन्फिनिट के लिए रे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इन्फिनिट के लिए रे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, राइट। अब चूंकि ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, लिसन वंस अगेन, दिस इज योर कॉनकेव लेंस। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रे इंसिडेंट हो रही है, कहाँ से आ रही है, रे जो इंसिडेंट हो रही है, ये रे इंसिडेंट हुई कैसे, टुवर्ड्स फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, राइट। ये हो गई, राइट। सो ओवरऑल कंसेप्ट क्या हुआ कि हम यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है जिसकी इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिट पर होता है। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, क्या डिस्कस कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट रहने देता हूँ। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ओके। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस दैट मीन्स F2। और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं यहाँ पर कहा कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड प्रिंसिपल में हम कहते हैं इमेज पॉइंट, जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इन्फिनिट पर होता है। क्लियर। सो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गए प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे अगर पैरेलल आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिट पर है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रे कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। अगर कोई रे पैरेलल आती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर हुआ, इन्फिनिट पे हुआ। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, इन्फिनिट। सो इमेज हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला, और इसे हम क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, इन फैक्ट दिस इज द इमेज पॉइंट, इसे हम कहते हैं इमेज पॉइंट। ओके स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये फेयर डायग्राम आप बनाएंगे इसे। कॉनकेव लेंस के लिए क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस के लिए कंडीशन क्या होगी, ये हो गई कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट क्या आ रही है, पैरेलल आएगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिट पर है। हमें क्या बताना है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पॉइंट होती है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट क्या होती है, इमेज पॉइंट होती है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी रे, ये क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और इसे हम क्या करेंगे, ट्रेस आउट कर लेंगे पीछे की तरफ। क्लियर। और ये हो जाएगा पॉइंट F2, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, ये हमारा क्या है, इमेज पॉइंट होगा। क्या कहेंगे इसे हम, इमेज पॉइंट कहेंगे, राइट। जिसके लिए इमेज क्या हो गया, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम किसी को भी हो, 1 by 1 आस्क मी। बस 2 ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। इमेज पॉइंट क्या होती है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगी, और ऑब्जेक्ट पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। क्लियर है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें, ओके, इसे हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम पॉइंट नंबर 6 डील कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 का है हमारा फोकल लेंथ। पॉइंट नंबर 6 क्या है, फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ को जनरली स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे दिखाते हैं इसे, स्मॉल f, राइट। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ है
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है f, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। अगर हम इसे f1 मान लें, अगर हम इसे क्या मान लें, f1 मान लें, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा ऑप्टिकल है तो हम इसे क्या मान सकते हैं, f2 ले लें, ओके। मैथमेटिकली ये f1 और ये f2 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों का जो मैथमेटिकल डिस्टेंस है वो क्या है, वैल्यू इक्वल होती है। हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं f से। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हम उसे क्या मान सकते हैं, f1। ये हमारा सेकंड है और ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, f2। वही कंसेप्ट, f1 और f2 की वैल्यू इक्वल है, हम इसे क्या मान सकते हैं, f। ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। सो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, फोकल लेंथ कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर क्या हो गया, 6 हुआ। ओके, इसे भी आप ड्रॉ कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो 1 by 1 प्लीज आस्क मी। ओके, ये कंप्लीट हो गई। अब हम पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है, पॉइंट नंबर 7 है इंटेंसिटी। ओके, पॉइंट नंबर 7 क्या है, इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी मैं यहाँ लिखता हूँ, पॉइंट नंबर 7 क्या है, इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास ये लेंस छोटा लेंस है और एक लेंस मैंने क्या बनाया, बड़ा। बहुत कॉमन सेंस है। हम इस लाइन को क्या कहते हैं, ये लाइन हमारी क्या है, ए बी मान लेते हैं। ये जो ए बी है वो क्या है, एपर्चर होती है, राइट। ये ए बी क्या हुआ, ए बी को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं, राइट। आप सभी जानते हैं कि एपर्चर क्या है, एक इफेक्टिव डायमीटर होता है ऑफ द लेंस। एपर्चर क्या है, एक इफेक्टिव डायमीटर होता है, सही है। ओके, यहाँ पर भी एपर्चर हुआ इस लेंस का, हम इसे नाम देते हैं सी डी। तो ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी की वैल्यू सी डी से क्या है, कम है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। कॉमन सेंस की बात है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से जो लाइट रे आएगी तो लाइट रे, और यहाँ जो लाइट रे है वह, यानी कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ लाइट, सी डी के लिए अमाउंट ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इस ए बी के लिए अमाउंट ऑफ लाइट क्या है, कम होगी। क्लियर हुआ। तो जब अमाउंट ऑफ लाइट कम होगी तो जो इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ जो इमेज बनेगी, ओके, इसका जो इमेज यहाँ पर बनेगा, ये जो इमेज बनेगी यहाँ पर मान लेते हैं आई डैश। तो आई डैश की जो ब्राइटनेस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ लाइट इज मोर। यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट इज लेस। जब अमाउंट ऑफ लाइट लेस होगी तो ये क्या होगा, लेस ब्राइट होगी। इमेज कैसा हो जाएगा, लेस ब्राइट होगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, ये मोर ब्राइट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो मैथमेटिकली एक कंक्लूजन निकाला गया, मैथमेटिकली कंक्लूजन निकाला गया कि जो इंटेंसिटी है
जो इंटेंसिटी है वो एपर्चर के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ओके, नाउ ये जो इंटेंसिटी है वो एपर्चर के स्क्वायर के क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। ओके, मैथमेटिकली ये फार्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद ये फार्मूला लिखा गया कि जो इंटेंसिटी है, यानी कि यहाँ जो इमेज की जो इंटेंसिटी है वो एपर्चर, ये जो एपर्चर है ए बी, ये जो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस है उसके स्क्वायर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स जितना बड़ा एपर्चर उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। क्लियर है? मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एपर्चर इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। ओके, इसे भी नोट डाउन करिए।